who stabbed him, and what happened that night, why none of these theories can be trusted. Believe me, viewers, unless you are gullible or you just want to accept anything at face value, you cannot accept all these ridiculous and stupid theories that are being put out on what happened and how this Bangladeshi climbed up a pipe by putting a ladder and then went up to the 12th floor like Spider-Man, got in through the window, stole some shoes and went out. It's all rubbish, garbage. Here are 10 reasons why we need to question this. I have 100 questions to ask tonight. The first question, let's not be politically correct about it. And Kareena Kapoor, sorry, but where were you during the attack? Were you in the house? Were you outside the house? Where were you? Right? The house help says that Kareena was at home during the attack. But Rhea Kapoor's Insta story suggests she was at a party with Rhea and the others. So where exactly was Kareena Kapoor Khan? Question number 2, who exactly took Saif to the hospital? And I've been saying this, why didn't Kareena take Saif to the hospital? Why did she say, okay, Saif, you're almost dying, why don't you just go and get treated and come back? Can you be as cool as that? She's there arguing with the domestic help near the foyer of the house. The domestic help statement mentions that Ibrahim Ali Khan took Saif to the hospital. The surgeon in his statement says he came to the hospital with Taimur. Who exactly took him to the hospital and why didn't Kareena go? Question number 3, what was exactly happening that she couldn't go? The CCTV footage that has been released, and this is really funny. So CCTV footage is from the 6th floor. Saif does not stay on the 6th floor. Saif stays on the 12th floor. But for some crazy reason, the police is leaking footage of the 6th floor CCTV. I'm sorry, it means nothing to me. Show me the footage from the 12th floor, for God's sake. Where is the footage from the 12th floor? Now, no blood stains on the clothes of the accused. This is another unbelievable thing. You're almost killed as a person. You butchered a person. There's been blood splashing all around. But part of the knife, almost 2.5 inches of the knife, was taken out of Saif's body. It was stuck there. But interestingly, there were no blood stains on the accused's clothes. Why? Now, this is the funniest part. Apparently, this man, the attacker, or I don't believe he's the attacker, attacked Saif Khan, climbed up a pipe, went up 12 floors through a pipe, entered Golmaal style through the window, went inside, stabbed, stole shoes, by the way, stole Saif Ali Khan's shoes, stabbed and almost killed Saif Ali Khan, right? And then came out, God knows how, and after coming out, he sat in a nearby garden, a park, just next to the house for 2 to 3 hours. Was he waiting to be caught by the police? Is the police unaware the attacker is in a park close by? Now, viewers, if you still want to believe all of this rubbish, then God help you. But according to the sources, the attacker entered into the high security building without being noticed. How is that possible? And after 6 stab injuries, leaving him blood-soaked, he's not been charged with attempt to murder. Why? What else would you charge him with? Why was there a 72-hour delay to catch the accused? Why was there a delay in recording the rickshaw driver's statement? If the rickshaw driver's statement was only recorded after, the pesky and meddlesome Republic Media Network, Republic TV interviewed him, frankly, Mumbai police, you can do better than this. Are you really sure about the arrest you've made? माहौल में बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि परिवार सामने आए। सीसीटीवी जो आया था और जो आरोपी का फोटो सामने, संदेह हो रहा है, मिसमैच हो रहा है। हाँ, सीसीटीवी में जैसे पहला जो चोर दिखता है, जो बाद में चप्पल चोर साबित होता है, उसका चेहरा और ये जो बांग्लादेशी है उसका चेहरा फर्क है। अब ये जो बांग्लादेशी पकड़ा गया, इसका सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, ये भी तो निकाल के देना चाहिए। इसके सीसीटीवी फुटेज फिर पता उनके घर में सीसीटीवी था नहीं था, मुझे नहीं मालूम है। तो मैं मुंबई पुलिस एक सक्षम पुलिस है, यहाँ पर बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं। फ्लोर का एक सीसीटीवी आया है, हाँ। इसी का, और लेकिन जो आरोपी है अभी जो पकड़ा गया है, बांग्लादेशी कहा जा रहा है, इसका मिसमैच हो रहा है। संदेह, ये सारे सवाल मुंबई पुलिस से पूछे जाने चाहिए और कहीं ना कहीं इसको इसके सपोर्ट में फैमिली को सामने आकर के अपनी बात कहनी पड़ेगी कि हुआ क्या एग्जैक्टली।
क्योंकि ये सिर्फ मेरे मन में सवाल नहीं है, ये सिर्फ आपके मन में सवाल नहीं है, यह प्रश्न इस समय मुंबई के एक एक नागरिक के दिमाग में, जो लोग जो प्रॉपर्टियों में रहते हैं उनके दिमाग में भी ये सवाल है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आलीशान अट्टालिकाओं में रहते हैं उनके मन में भी ये सवाल है कि भाई हम लोग बिल्डिंग में रह रहे हैं, हमको लगता है बहुत सुरक्षित है, हमने सिक्योरिटी अरेंजमेंट वगैरह सब कर रखा है, फिर भी क्या इस तरीके से कोई चोर किसी खिड़की की तरफ से या फिर डक से घुस करके हमारे घर में घुस सकता है और इस तरह से हमला कर सकता है? तो ये बताना पड़ेगा, दोनों पक्ष को बताना पड़ेगा, तब जाके मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर पे जो सवाल उठ रहा है उन सवालों का जवाब मिलेगा। जो मुंबई पुलिस थ्योरी पेश कर रही बता रही है, क्या उससे सहमत है आप? अभी तक तो जो उन्होंने बताया है कि भाई जो तीसरा आरोपी जो उन्हें पकड़ा है वो आरोपी सही है और मैं मान के चलता हूं कि सही है, लेकिन उसके खिलाफ क्या क्या सबूत है और उसने सचमुच हमला किया नहीं किया, उसके हमला करने का मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था, ये सारी बातें एक बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से सामने आनी चाहिए। लेकिन मुंबई पुलिस को 3 दिन लग गया जांच करने। मुंबई पुलिस स्टेशन बगल में सोया था, फिर स्टेशन गया, जो बता रही पुलिस, फिर थाने चला गया, 3 दिन पकड़ने में लग गया एक चोर को लेकर। लगता है टाइम, ऐसा नहीं है कि जो चोर अगर वो बांग्लादेशी है और वो बाहर से आया है तो उसके पुराने रिकॉर्ड्स तो हमारे पास है नहीं, उसके नंबर कुछ है नहीं, तो एकदम से ऐसे आरोपी तक पहुंचने में वक्त लग सकता है। पुलिस को वक्त देने के लिए हमको बहुत उदार मन से तैयार रहना चाहिए, लेकिन जब पुलिस छानबीन कर रही है तो उसके ऊपर जिस तरह का प्रेशर होता है उस प्रेशर में आकर के किसी भी व्यक्ति को आरोपी बनाना ये अच्छी बात नहीं होगी। जो आरोपी का भी एड्रेस आया है वो कोलकाता का आया, जो फेक डॉक्यूमेंट के जरिए वहाँ से सिम कार्ड खरीदा और जिस तरह से वहाँ से आया तो कोलकाता से आ रहा है। नहीं, ये तो एक बहुत पुरानी मोडस ऑपरेंडी है जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच एक नदी है, पद्मा नदी। उस पद्मा नदी में नावें चलती हैं और बांग्लादेशी लोग उस नाव पे बैठ के 100-200 रुपये का भाड़ा देते हैं और इस तरफ आ जाते हैं। नदिया डिस्ट्रिक्ट है और भी बहुत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे। तो और इसी तरीके से वर्षों से जो बांग्लादेशी हैं वो बांग्लादेश से पहले पश्चिम बंगाल में आते हैं और उसके बाद फिर वहाँ पर अपने कुछ पेपर बनाते हैं। फेक है, सही है कहना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ जिस तरह की सरकार है वह सरकार इस प्रकार के तत्वों को प्रश्रय देती है, संरक्षण देती है। तो ये बांग्लादेशी बाद में वोटर भी बन जाते हैं, ये बांग्लादेशी बाद में अपना राशन कार्ड बनाते हैं, वोटर बनते हैं, बाद में उनको वहाँ रोजगार नहीं मिलता तो फिर कभी दिल्ली जाते हैं, कभी मुंबई जाते हैं, अलग अलग इसी तरह से पूरे देश में फैल गए हैं ये लोग। तो ऐसे बांग्लादेशियों की जो घुसपैठ है उसको रोकने में एक इसको राष्ट्रीय प्रश्न समझ करके, सिर्फ वोटों की पॉलिटिक्स नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय मुद्दा समझ करके पश्चिम बंगाल की सरकार, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र की सरकार और दक्षिण भारत की सरकार, दिल्ली की सरकार, सबको मिलकर के एक बहुत बड़ा एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, तब जाके ऐसे बांग्लादेशी क्रिमिनल से हिंदुस्तान को सहायता मिलेगा, राहत मिलेगी। लोगों के मन में संदेह है कि एक इतने बड़े एक्टर के घर पर इतना सुरक्षा होते हुए भी ये चोर चोरी करने जाएगा क्या? इसका राज कुछ दूसरा है, ऐसा लोगों के मन में संदेह है। ये सब संदेह है, मतलब सिर्फ आपके मन में नहीं है, बहुत मुंबई के बहुत सारे लोगों के मन में इस प्रकार के प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का जवाब तो देना पड़ेगा। मेरे मन में भी इस तरह के प्रश्न है और बल्कि पिछले 3-4 दिनों से मैं जहां जाता हूं वहीं ये प्रश्न पूछा जाता है कि वो कैसे चोर घुस गया भाई, वो चोर जाकर के चोरी तो कर नहीं रहा है, वो हमला कर रहा है, तो क्या हमला करने के लिए घर में घुसना आधी रात को ये जरूरी है क्या? हमला ही करना होगा किसी को तो कहीं और भी कर सकता है, शूटिंग प्लेस पे भी कर सकता है। तो ये है क्या पूरा मामला? इस पूरे मामले की सच्चाई निकल के आनी चाहिए और पुलिस लाएगी सच्चाई, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी परिवार की भी बनती है। चोर कुछ लेके गया नहीं? हाँ, ये तो मैं खुद ही सवाल उठा रहा हूँ कि एक ऐसा चोर आता है जो कुछ चोरी नहीं करता, सिर्फ हमला करता है, तो क्या उसका मोटिव सिर्फ हमला करना था? क्या उसका मोटिव चोरी करना नहीं था? और सिर्फ हमला करने के मोटिव से अगर कोई आया हुआ है तो फिर घर में क्यों घुसेगा, वो आधी रात को क्यों घुसेगा? ये इस क्राइम को कहीं और भी अंजाम दिया जा सकता था, तो ये बताएगी पुलिस आपको। अभी पुलिस को पहले चोरी का बोली, अभी बोले कि हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं। बिल्कुल पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, मुंबई पुलिस, बांद्रा पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पूरे प्रकरण की जांच हर एंगल से करे और दूध का दूध, पानी का पानी इस शहर को बताएं, पूरे देश को बताएं। क्यों? क्योंकि मुंबई के लोग सामान्य तौर पर थोड़ा घबराए हुए हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लोग तो हर बात के ऊपर एक लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा कर देते हैं, विपक्ष के लोग भी बहुत ज़्यादा इस पर सवाल कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि ये सलमान खान को जैसे नकिया मिल रही है वैसे ही हमारे यहाँ कोई भी फिल्म स्टार सुरक्षित नहीं है। फिर बांद्रा ये जो बाबा सिद्दीकी की जिस तरह से हत्या हुई है उस हत्या की घटना से भी इसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो हवा में सारी बातें उठ रही हैं और तरह तरह के जो सवाल उठ रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों का जवाब देना पड़ेगा, मुंबई पुलिस को देना पड़ेगा और साथ साथ परिवार को भी सामने आना पड़ेगा। परिवार कहीं बच रहा है बात करने के लिए। कल काफी कोशिश किया गया कि वो इस मुद्दे बात करे, देश जानना चाहता है। मुंबई पुलिस जो बता रही है आखिर ये थ्योरी क्या है, ये सारी चीजें क्या है? हाँ, मुझे भी बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है क्योंकि ये आप नहीं कह सकते कि हमारा निजी मामला है, ये हमारा प्राइवेट मामला है और इसमें हमको तंग मत करिए। नहीं, एक बड़ा हादसा हुआ है जैसा कहा जा रहा है, एक बड़ा अपराध घटित हुआ है जैसा कहा जा रहा है। वो कितना बड़ा अपराध था नहीं था, वो हमला कितना बड़ा था, हमला था नहीं था, वो कौन सी चाकू थी जो अंदर जाकर टूट जाती है और बाद में चाकू का एक दूसरा टुकड़ा घर में भी मिलता है, तो ये क्या चाकूबाजी है, इसके ऊपर एक खुलासा आना चाहिए। और खुलासा मुझे लगता है कि इनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि उनको आना पड़ेगा सामने और बताना पड़ेगा। जो आरोपी का एडवोकेट है वो कह रहा है कि मुंबई पुलिस कुछ मिल नहीं रहा था इसलिए इसको पकड़ के लेकर आई है, बांग्लादेशी नहीं है और जो चेहरे मैच नहीं हो रहे हैं, जो 6th फ्लोर का जो CCTV है और जो आरोपी को गिरफ्तार किया है शहजाद को, उसका चेहरा मिसमैच नहीं हो रहा। कहीं मुंबई पुलिस एक थ्योरी बना रही है।
मुझे नहीं लगता कि मुंबई पुलिस के ऊपर तत्काल कोई शक किया जाना चाहिए। हाँ, मुंबई पुलिस से सवाल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि मुंबई पुलिस के ऊपर पूरे मुंबई शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी बनती है। मुंबई के एक एक नागरिक सुरक्षित रहे, इसकी जिम्मेदारी मुंबई पुलिस पे है। और अगर मुंबई पुलिस के छानबीन में अगर कोई छेद दिख रहे हैं या कुछ सवाल उठ रहे हैं, तो उन सवालों का जवाब देने के लिए मुंबई पुलिस को सामने आना चाहिए। लेकिन एकदम से तात्कालिक तौर पर मुंबई पुलिस के कामकाज पर सवाल उठाना मुझे सही नहीं लग रहा, क्योंकि हमारे पास बहुत ही सक्षम पुलिस है और यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, सक्षम हैं, ईमानदार हैं और बहुत ही होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं। तो ऐसे ऑफिसर निश्चित तौर पर सच ढूंढ के आपके सामने रख देंगे। थोड़ा उनको वक्त मिलना चाहिए, लेकिन उनको सामने आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा।